لإجلال أجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وعليك السلام يا أمين معي الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي والله فزنا ففاز شيعة ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه الصلاة والسلام. پروردگار تجھے واسطہ ہے اس حدیث قصہ کا، تجھے واسطہ ہے صاحب قصہ کا، تجھے واسطہ ہے وارث قصہ کا، تجھے واسطہ ہے شہزادی کی عظمتوں کا، ان کے صبر کا، ان کی قربانیوں کا. میرے مالک دنیا میں جہاں جہاں بھی تیرے حسین کے چاہنے والے ہیں، علی ولی اللہ پڑھنے والے ہیں، میرے مالک ان سب کی جان مال عزت آبرو ناموس اور ان کے بچوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں بیماری کربلا کے صدقے میں، بیماری مدینہ کے صدقے میں انہیں جلد جلد شفا کامل و عاجل عطا فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں جناب مسلم کی غربت کا واسطہ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما. یا اللہ جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں مشرف فرما. یا اللہ جو مومن و مومنات جن لوگوں نے گزارش کی ہے، جن کے رشتہ دار یا گھر والے مریض ہیں، خصوصاً جن لوگوں نے التجا کی ہے، ان سب کے مریضوں کے لیے آپ حضرات ان کی شفا یابی کے لیے ایک بار نعرہ سلوات پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا اللہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا دنیا میں جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے میرے مالک تو عزاداری کو فروغ عطا فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما. یا اللہ منتقم خون حسین وارث کربلا امام عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعدیل عطا فرما اور ان کے صدقے میں ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ تیری بارگاہ میں خاص دعا یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی اس مجلس کا پروگرام کیا ہے، جو جس طرح سے بھی اس مجلس میں شریک ہیں اور پنجتن سوسائٹی کے تمام اراکین اور اس حسینیہ کے بانیان ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وآل محمد. آئیے حضرات پیش خانے کے لیے میں سہیل میاں سے گزارش کروں کہ وہ تشریف لائیں. ایک نعرہ سلوات سے ان کا اللهم صل على محمد وآل محمد.
سے کیا مجلس ہو گیا جی؟ جی جی اچھا. نعرہ سلوات. نعرہ سلوات. یہ اسلام کیا ہے عطائے محمد، یہ اسلام کیا ہے عطائے سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد، یہ اسلام کیا ہے عطائے محمد، ہے قرآن مدحت ثنائے محمد، ہے قرآن مدحت ثنائے محمد، اور غریبوں یتیموں کو فاقہ کشوں کو، غریبوں یتیموں کو فاقہ کشوں کو، کلیجے سے اپنے لگائے محمد، کلیجے سے اپنے لگائے محمد، اور بشر چیز کیا ہے کہ ان کنکروں کو، بشر چیز کیا ہے کہ ان کنکروں کو، محبت سے کلمہ پڑھائے محمد، محبت سے کلمہ پڑھائے محمد، نہیں گر سکے گا وہ انسان جہاں میں، نہیں گر سکے گا وہ انسان جہاں میں، جسے ہر قدم پر اٹھائے محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ. جسے ہر قدم پر اٹھائے محمد، اور اشارے سے دو ٹکڑے کر کے کمر کے، اشارے سے دو ٹکڑے کر کے کمر کے، پھر آپس میں ان کو ملائے محمد، سبحان اللہ. اشاروں سے دو ٹکڑے کر کے کمر کے، پھر آپس میں ان کو ملائے محمد، اور فرشتے بھی ان کے دہن چوم لیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتے بھی ان کا دہن چوم لیں گے، تیرے گیت جو گنگنائے محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے گیت جو گنگنائے محمد، اور مقدر کے مارے یہ کہتے رہیں گے، مقدر کے مارے یہ کہتے رہیں گے، بگاڑے خدا اور بنائے محمد، سبحان اللہ. بگاڑے خدا اور بنائے محمد. نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
गया है, आग लगी है अरमानों में, मर ना जाए मादर अकबर, कौन सहारा दे, या अली आओ, या अली आओ। اللہ رحمۃ اللہ علیہ جزاک اللہ پروردگار سہیل میاں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آئیے حضرات اب میں گزارش کروں قیصر جلال پوری سے کہ وہ تشریف لائیں ایک نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ سلوات سید بھائی ایک مطلب اشتہار کہنے کی کوشش کی ہے، دعا چاہتا ہوں. کہا اونو محمد نے چلو تیار ہو جائیں، کہا اونو محمد نے چلو تیار ہو جائیں، اور لینوں کے لیے ہم آہنی دیوار سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 واہ. لینوں کے لیے ہم آہنی دیوار ہو جائیں. تیسرا چوتھا مسئلہ کہ احد کی یاد آ جائے لینوں کو سرے مقتل، چلو اب کربلا میں جعفر سبحان اللہ واہ واہ واہ. چلو اب کربلا میں جعفر تیار ہو جائیں. درود بھائی محمد وال محمد. نبی سے عشق ہو کس طرح عسکری کے بغیر، نبی سے عشق ہو کس طرح عسکری کے بغیر، نبی سے عشق ہو کس طرح عسکری کے بغیر، کہیں پہ چاند نکلتا ہے چاندنی سبحان اللہ. کہیں پہ چاند نکلتا ہے چاندنی کے بغیر، اور خدا کے سامنے سجدے میں سر بھی رکھنا ہے، خدا کے سامنے سجدے میں سر بھی رکھنا ہے، حقیقی عشق نہیں ہوگا بندگی کے بغیر، سبحان اللہ سبحان اللہ. حقیقی عشق نہیں ہوگا بندگی کے بغیر، اور جو چھوڑ دو گے تفاخر تو دیکھو نور دیکھو گے، جو چھوڑ دو گے تفاخر تو نور تو دیکھو گے، جو چھوڑ دو گے تفاخر تو نور دیکھو گے، تمہیں دیکھے گا نہیں کچھ بھی سادگی کے سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں دکھے گا نہیں کچھ بھی سادگی کے بغیر، اور نکی کے لال کی خوشبو جہاں میں پھیلی ہے، نکی کے لال کی خوشبو جہاں میں پھیلی ہے، چمن مہکتا نہیں دی کا اس کلی کے بغیر، چمن مہکتا نہیں دی کا اس کلی کے بغیر، اور جنا کا راستہ کوچے سے ان کے
जा नहीं सकते हो इस गली सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जा नहीं सकते हो इस गली के बगैर जहाँ में रास्ता कूचे से इनके जाता है रम में जा नहीं सकते हो इस गली के बगैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बाद वाजिब फरजों बेहतरीन अशारात की खिदमत में पेश कर रहे थे जनाब कैसर जलालपुरी। आइए हजरात, मैं गुजारिश करूँ जनाब गजनफर सुल्तानपुरी साहब से कि वो तशरीफ लाएं, एक नारे सलवात से उनका इस्तकबाल फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गजनफर भाई थोड़ा आगे कर लीजिए, आपको बैठने मुश्किल हो रही है पीछे। नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले बिस्मिल्लाह। जो नफ्स बेच के अपना खरीद ले मर्जी, जो नफ्स बेच के अपना खरीद ले मर्जी, उसी को ज़ेब है अल्लाह का वली कहना, उसी को ज़ेब है अल्लाह का वली कहना। अगर लहू में है शामिल विलायते हैदर, अगर लहू में है शामिल विलायते हैदर, तो फिर ज़मीर पे वाजिब है या अली। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। या अली। फिर ज़मीर पे वाजिब है या अली कहना। रहते थे जिस तरह से अली मुस्तफा के साथ, रहते थे जिस तरह से अली मुस्तफा के साथ, रहते थे जिस तरह से अली मुस्तफा के साथ, अब्बास ऐसे रहते थे शाहे हुदा के सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब्बास ऐसे रहते थे शाहे हुदा के साथ। मश्को अलम को देख के महसूस ये हुआ, मश्को अलम को देख के महसूस ये हुआ, बाली सकीन रहती हैं अपने चचा के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाली सकीन रहती हैं अपने चचा के साथ। बिस्मिल्लाह। सांसों का जैसे रिश्ता जुड़ा है हयात से, सांसों का जैसे रिश्ता जुड़ा है हयात से, ऐसा हमारा रिश्ता है फर्शे अज़ा के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा हमारा रिश्ता है फर्शे
सुभान अल्लाह। मुझको यकीन है यही शारिब तेरे अशार दुनिया में जगमगाएंगे एक दिन जिया सुभान के अल्लाह, साथ। सुभान अल्लाह। दुनिया में जगमगाएंगे एक दिन जिया के साथ। नारे सलवात। बहुत ही अच्छे अच्छे अशार गज़नफ़र साहब आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे। खाके शिफा के हवाले से बात की तो मैं चार मिसरे आपके गोश गुजार करते हुए खाके शिफा के हवाले से कि हमारे सजदों की तुम फिक्र छोड़ दो वाइज, हमारे सजदों की तुम फिक्र छोड़ दो वाइज, सवाल मत करो बूझले बेहया की तरह। हमारे सजदों की तुम फिक्र छोड़ दो वाइज, सवाल मत करो बूझले बेहया की तरह। मैं उस पे सजदा नहीं उसको सजदा कर लूंगा, मैं उस पे सजदा नहीं उसको सजदा कर लूंगा। कोई जमीन दिखाओ तो करबला, उस पे सजदा नहीं उसको सजदा कर लूंगा। कोई जमीन दिखाओ तो करबला की तरह, कोई जमीन दिखाओ तो करबला की तरह। आइए हजरात, मैं अकरम भाई से गुजारिश करूं कि वो तशरीफ लाएं, नारे सलवात से उनका इस्तकबाल फरमाएं। नारे हैदरी, नारे सलवार, मोहब्बत वाले मोहब्बत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद।
جب زی سے زمیں کی طرف جب زی سے زمیں کی طرف آنے لگے مولا نہ کوئی مددگار ہے تو نہ کوئی سہارا اس وقت خیال آیا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں ہے میں کیسے اٹھوں مولا میرے ہاتھ نہیں ہے میرے ہاتھ نہیں علی مہدی صاحب آپ کے روبرو ہیں، نعرہ سلوات پڑھ کر ان کو سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قطع ہے سماعت فرمائیں آپ سب لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کو نبی مان کر سدھر گئے ہوتے، علی کو مولا مان کر نہ مکر گئے ہوتے، نہ گھر بطول کا جلتا نہ کربلا ہوتی اگر یہ تینوں ہی بچپن میں مر گئے ہوتے۔ یزید والوں کی گردن میں ڈالنے کے لیے بچے ہوئے ابھی لعنت کے ہار باقی ہیں، ہمارا ان سے کبھی فیصلہ نہیں ہوگا، یزید مر گیا کچھ رشتہ دار باقی ہیں۔ اگر حسین سے الفت ہے دوستو سن لو، کسی غریب کی عزت پہ وار مت کرنا، کرو زہاں میں محبت ہر ایک سے کرو، لیکن کبھی حسین کے دشمن سے پیار مت کرنا۔ علی کا ادنا غلام ہوں، شباب لے کر میں کیا کروں گا، بسی ہے دل میں علی کی خوشبو، گلاب لے کر میں کیا کروں گا۔ فرشتے آئے لہد میں جس دم، یہ کہہ کے واپس ہوئے وہ اس دم، کفن میں اس کے خاکے شفا ہے، حساب لے کر میں کیا کروں گا۔ نعرے سلوات۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اب میں ذکی بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں، ایک نعرہ سلوات سے ان کا استقبال کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، اور جو پیچھے بیٹھے ہیں صوفے پر ان سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں کہ آگے آ جائیں۔ ابھی ان کو صوفے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نہ کرے کبھی صوفے کی ضرورت پڑے۔ آ جائیں آپ حضرات، تھوڑا سا ماحول بنے، تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں اس سامنے والی لائن میں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، مولا فرش اعلیٰ پہ بیٹھنے کا آپ حضرات کو اجر دیں۔ جن کو سہارے کی ضرورت نہیں وہ بالکل سہارا نہ لے، وہ آگے آ جائیں برائے مہربانی۔ پروردگار سب کو صحت دے، تندرستی دے۔ آئیے حضرات، آپ کے روبرو ہیں ذکی مظفر نگری صاحب، نعرہ سلوات پڑھ کر ان کا سماعت فرمائیں۔ خدا میں جیسے ہی حیدر نظر آیا، لرزے میں خود ہی کر لئے اجدر نظر آیا، اور جب آنے لگی بنت اسد کعبے کی جانب، دنیا کو ایک دم سے نیا در نظر آیا کہ حیدر کے دوستوں کی تو عزت نظر میں رکھ، حیدر کے دوستوں کی تو عزت نظر میں رکھ، ان کے عدو کے واسطے ذلت نظر میں رکھ، اور ہم منتشر ہوئے تو نہیں کوئی چارگر، اس امت رسول کی وحدت نظر میں رکھ، اور گر ہے کنیز حضرت زہرائے مرضیہ تو شہزادی جہان کی سیرت نظر میں رکھ، اور جنت سے لے کے آئے نبی جس کو سیب میں اس بسعت الرسول کی جنت سے لے کے آئے نبی جس کو سیب میں اس بسعت الرسول کی رفعت نظر میں رکھ، اور جن کے سلام کا نہ ملا ہو جواب تک رحمت نہ بھیج، ان پہ تو لعنت نظر میں رکھ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، پروردگار کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔
حیدر بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں جناب حیدر مراد آبادی صاحب. فدیڑی ارے نام ہی عجیب سا لگتا ہے, نہیں اچھا لگتا ہے. نعرہ سلوات محمد والے محمد. مجلس میں صلوات محمد علیہ علی کے لال کی مجلس میں جو بھی آتے ہیں, علی کے لال کی مجلس میں جو بھی آتے ہیں, دعائے فاطمہ زہرا وہی تو پاتے ہیں. دعائے فاطمہ زہرا وہی تو پاتے ہیں کہ ہاں جن کو ان سے محبت نہیں ہے گر حیدر, وہ لوگ صبح مساء لعنتیں کماتے ہیں. جن سے محبت نہیں ہے گر حیدر, وہ لوگ صبح مساء لعنتیں کماتے ہیں. دشمنوں پہ بے شمار. کہ آؤ مل کر کریں ماتم شہ مظلوم کا, ایسے ویسوں کا نہیں ہے تذکرہ معصوم کا. اور کیسی مجلس کیسا ماتم ہم کو کب معلوم تھا, ہم پہ یہ احسان ہے بس زینب کہ ہم پہ یہ احسان ہے بس زینب کلثوم کا. اور بے فائدہ نہیں اللہ کا یہ سلسلہ, کہ بے فائدہ نہیں اللہ کا یہ سلسلہ. بیٹھو گے ہمارے پاس تو تم جان جاؤ گے, اور اللہ کی نظر میں ہے کیا اس کا مرتبہ, مجلس بپا کرو گے تو پہچان. بہت اچھا ہے, بہت اچھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ سلوات نعرہ حیدری. آئیے حضرات, یہ تھے جناب حیدر صاحب. میں تھوڑا سا آ جائیں, میں معذرت کے ساتھ میں نام بھول گیا. مقدر بھائی, مقدر بھائی سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں, ایک نعرہ سلوات سے ان کا استقبال. اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم جسے بھی مانتے ہو, سب کے سب فرار ہیں. تم جسے بھی مانتے ہو, سب کے سب فرار ہیں. تم جسے بھی مانتے ہو, سب کے سب فرار ہیں. ارے مانتے ہیں ہم جنہیں وہ ہے مانتے ہیں ہم جنہیں وہ ہے درے قرار ہے. اور شعر لکھے تو بطور خاص, گر علی کا ذکر روکو گے کریں گے دار پر. کہ گر علی کا ذکر روکو گے کریں گے دار پر. ارے جان لو ہم عاشقان میسم کمار ہے. جان لو ہم عاشقان میسم کمار ہے. اور یہ شعر لکھے بطور خاص کہ دل میں ہوں بے حیدر کرار جو ہے ہی نہیں. کہ دل میں ہوں بے حیدر کرار جو ہے ہی نہیں. ارے لاکھ ہو اعمال پھر بھی سب کے سب بیکار ہیں. کہ لاکھ ہو اعمال پھر بھی سب کے سب بیکار ہیں. اور غاصب باغ فدق تو جائے گا اب نار میں. دیکھیے غاصب باغ فدق تو جائے گا اب نار میں. ارے فاطمہ زہرا کے بیٹے خلد کے سردار ہیں. کہ فاطمہ زہرا کے بیٹے خلد کے
سردار ہے. اور یہ شعر لکھا بطور خاص حاصل کلام شعر پیش کر رہا ہوں. ساری دنیا لگی پڑی ہے کہ کسی طریقے سے مجلس اور ماتم رک جائے, لیکن پھر بھی نہیں رکتا. اسی کے حوالے دیکھیے گا کہ مجلس جو روک دے ذکر علی ہونے نہ دے, کہ مجلس جو روک دے ذکر علی ہونے نہ دے. ارے بس یہی وہ لوگ ہیں جو دین کے غدار ہیں, کہ بس یہی وہ لوگ ہیں جو دین کے غدار ہیں. اور خوب بہا کر شہ کے غم میں ہم بتاتے ہیں یہی, خوب بہا کر شہ کے غم میں ہم بتاتے ہیں یہی. اے امام وقت ہم بھی جنگ کو تیار ہیں, کہ اے امام. اور آخری شعر دیکھیں بطور خاص کہ جو ولائے حیدر کرار سے خالی رہیں. حاصل کلام شعر کی بلا دیکھیں بطور خاص کہ جو ولائے حیدر کرار سے خالی رہیں. ایسے سجدے ایسے روزے ایسے حج بیکار ہیں, کہ ایسے سجدے ایسے روزے ایسے حج بیکار. اور مقتدی کے بطور خاص کہ کربلا جائے مقدر اس کا یہ ارمان ہے, کہ کربلا جائے مقدر اس کا یہ ارمان ہے. اے فرشتو جان لو یہ شہ کا ماتمدار ہے, کہ اے فرشتو جان لو یہ شہ کا ماتمدار ہے. صلوات بابا سے گنا. یہ تھے جناب مقدر صاحب جنہوں نے بہترین کلام پیش کیا, اور آخر میں آپ سب کو دعا میں بھی شریک کر لیا. اور واقعی میں جب سے یہ بیماری آئی ہے, جب سے یہ پابندیاں لگی ہیں, لوگ تڑپ رہے ہیں یہاں سے جانے کے لیے, پوری دنیا سے جانے کے لیے, تو چار مصرے آپ سب کو شریک کرتے ہوئے جذبہ بوذر و سلمان لیے بیٹھے ہیں, جذبہ بوذر و سلمان لیے بیٹھے ہیں, کفر کی بھیڑ میں ایمان لیے بیٹھے ہیں. ہم کو جنت کی نہ خواہش ہے نہ چاہت مولا, کربلا جانے کا ارمان کربلا جانے کا ارمان لیے بیٹھے ہیں. اور اسی کے برعکس چار مصرے پیش کر دوں کہ ایک دل میں کئی ارمان لیے بیٹھے ہیں, ایک دل میں کئی ارمان لیے بیٹھے ہیں, ذہن کو اپنے پریشان لیے بیٹھے ہیں. کیسے جنت میں وہ جائیں گے بتا دے کوئی, جو فقط ہاتھوں میں قرآن لیے بیٹھے. آئیے حضرات رضا صاحب سے گزارش کیا ہے, شیخ رضا صاحب سے, کہ وہ تشریف لائیں, نعرہ صلوات سے ان کا استقبال. برائے ظہور امام زمانہ صلوات. بطول قلب رسول سیدہ فاطمہ الزہرا بلند تر صلوات. علی کے وصف ہے اتنے شمار کون کرے, علی کے وصف ہے اتنے شمار کون کرے. یہ کام تیرا ہے پروردگار کرے, یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی, شگاف کعبے میں
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सलवा पर लहू लहू ए मुसल्ला लहू लहू ए जबी लहू लहू ए मुसल्ला लहू लहू ए जबी ए जुल्म देख कहीं ए जुल्म देख कहीं दिले नबी तो नहीं लहू लहू है मुसल्ला लहू लहू है जबी लहू लहू है मुसल्ला अभी तो कूफे की शहजादी अभी तो कूफे की ज़ैनब तो शाहज़ादी है मगर पिदर ने तुझे ये खबर सुना दी है के बाजुओं में रसल के बाजुओं में रसल बंधेगी ये तो यही लहू लहू ए मुसल्ला लहू लहू ए जबी अजीब यास से गाजी की समत देखते हैं गला हुसैन का ज़ैनब के हाथ चूमते हैं मगर अली ओ वली मगर अली ओ वली कलाम करते नहीं लहू लहू ए मुसल्ला लहू लहू ए जबी लहू लहू ए मुसल्ला जज़ाकल्लाह इनकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए और इनकी तमाम नेक हाजतें पूरी फरमाए। आप हज़रात फ़र्श अज़ा पे बैठे हैं, परवरदिगार आप सबको तरक्की अता फरमाए और आपकी तमाम नेक हाजतें जल्द से जल्द पूरी हो जाएं। जो जिस तरह से भी इस मजलिस अज़ा में शरीक है, परवरदिगार उन सब की तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमाए, उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, उनको तरक्की अता फरमाए, उनके रास्ते में कोई भी रुकावट आए परवरदिगार उस रुकावट को ख़त्म कर दे। या अल्लाह तुझसे मैं वास्ता देता हूँ तेरी आखिरी हुज्जत का, तेरे आखिरी हुज्जत के जलाल का, उनके सब्र का। मेरे अल्लाह तुझे तेरी जलालत का वास्ता, तुझे तेरे सब्र का वास्ता। दुनिया में जहाँ जहाँ भी तेरे हुसैन के अज़ादार हैं, खुसूसन अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले हैं, मेरे मालिक उन सब को, उन सब की जान माल इज़्ज़त आबरू नामूस और उनके बच्चों की हिफाजत फरमा। आइए हजरात 4 मिसरों से मैं आगा का इस्तेक़बाल करूं। और इस फर्श पे आने के बाद अजीब सी कैफियत होती है वाकई में कि जुमेरात और जुमा ये हमको मौका मिलता है कि हम आसमान पे बैठते हैं। ये फर्श अज़ा वो आसमान है जिस पे फरिश्ते चाहत करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि हमको भी ये फर्श नसीब हो। और एक बार फिर मैं बीच में ये कहना ज़रूरी समझता हूँ, कुछ लोगों ने बड़ी ही इल्तिजा की है, उनके रिश्तेदार मरीज़ हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, तो आप हजरात से गुजारिश है कि जितने भी मरीज़ हैं सबकी शिफायाबी के लिए पुरजोश नारे सलवात पढ़ दें।
بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر حسینیہ کے بانیان کے مرحومین، پنجتن سوسائٹی کے مرحومین، مومنین مظفر نگر کے مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین کو یاد فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار مومنین مظفر نگر کو سلامت رکھے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اور یہ دعا ہے کہ پروردگار انہیں جذبہ دے کہ اسی طرح سے ہمیشہ پروگرام وغیرہ کرتے رہیں. جب جب تصورات میں ڈھونڈا حسین کو، جب جب تصورات میں ڈھونڈا حسین کو، اشکوں کی جا نماز پہ پایا حسین کو. جب جب تصورات میں ڈھونڈا حسین کو، اشکوں کی جا نماز پہ پایا حسین کو. زندہ رہے تو ساتھ تھے، روزہ بھی ساتھ ہے. زندہ رہے تو ساتھ تھے، روزہ بھی ساتھ ہے. عباس نے کبھی نہیں چھوڑا حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ رہے تو ساتھ تھے. مولا سلامت رکھیں آپ حضرات کو. آئیے میں چاہتا ہوں کہ آقا کو زیادہ سے زیادہ سنا جائے. میں بہت جلدی کر رہا تھا لیکن لوگ آتے گئے اور کارواں بڑھتا گیا. تو جو پیشخانی کرنے والے حضرات تھے وہ ماشاءاللہ سے سبھی فیضیاب ہوئے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کے جذبات کو قبول کرے اور ان کی عقیدت کو قبول کرے. آئیے گزارش کرتا ہوں عالی جناب مولانا سید آصف حسین صاحب رضوی صاحب اللہ کی خدمت میں کوئی تشریف لائیں. ایک نعرہ صلوات سے ان کا استقبال فرمائیں. برائے ظہور امام زمانہ صلوات. بطول قلب رسول سیدہ فاطمہ الزہرا ام ابیہا بلند تر صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق تعالى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا.
सलवात पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा बरकत। बुखल तो वैसे भी मज़मूम सिफत है, बखील की कहीं तारीफ नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मजम्मत की गई है उस बखील की गई है जो सलवात पढ़ने में बुखल करे। वैसे भी जिसको चाहिए कि अपनी जिंदगी से गुनाहों का बोझ, तमाम तर बुराइयों का बोझ हल्का करना हो, उसे चाहिए कि कसरत से दुरूद पढ़ा करें। ये कि तमाम इस तरीके के खसो खाचात को बहा के ले जाता है। और सबसे बड़ी इसकी जो यानी यूँ कह ले कि आपकी ज़िंदगी पे असरात में से सबसे बड़ा असर ये है कि इंसान को, अगर खुद को तो महसूस नहीं होता है किसी को भी, लेकिन कुछ सिफतें ऐसी होती हैं कि वो मज़मूम सिफतें हैं, कभी कभी इंसान में पाई जाती हैं, सब में है, दर्द नहीं कर पाता है। कहते हैं निफाक एक बुरी सिफत है ना, हो सकता है कि हमें अंदाज़ा ना होता हो कि मतलब ये भी हमारे अंदर कहीं है, जिसे दिल से निफाक दूर करना हो और दिल को बिल्कुल खालिस और पाक करना हो, उसे चाहिए कि कसरत से मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ना है। ये तो सारी सिफतें मैंने दुरूद की बताई, तो सिर्फ मस्जिद के लिए नहीं कि मतलब मस्जिद में आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा महसूस होगा जाकिर को या खतीब को ना, ये तो वैसे भी आप कहीं भी रहें, किसी भी जगह रहें, वैसे तो जुमे का दिन है ही मखसूस, लेकिन वैसे भी कहीं भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, ज़िंदगी में फेस करना पड़ता है। और वैसे भी मैं तो नौजवानों को यही रहनुमाई करता ही रहता हूँ, सालों हो गए, बरसों हो गए, कि कभी हिम्मत मत हारिए। हाँ, हिम्मत हार के अगर बैठ जाए ना तो फिर उसको मर्द नहीं कहा जाता। मर्दों की ये सिफत नहीं होती कि हिम्मत हार जाए, किसी भी मरहले में, ज़िंदगी की किसी भी मरहले में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मसाइल को फेस करने का, मसाइल को, जाहिर की ज़िंदगी नाम ही है मसले का, हर कदम पर मसले हैं, सिर्फ आप ही से नहीं दो चार हैं, हर कैटेगरी के, हर तबके के लोग इससे दो चार हैं। लेकिन वो जब मसाइल आते हैं तो उसको फेस करने का तरीका भी जाहिर है कि आपसे बेहतर किसको मिला है कायनात में। दुनिया के पास तरीके हो या ना हो, लेकिन सबसे बेहतर तरीका आपके पास है। अब आप पूछेंगे कि वो कौन सा बेहतर तरीका है? दुनिया के पास वो सरमाया है ही नहीं कि ताकत को, अपने एनर्जी को बूस्ट कर सके। सिर्फ आपको वो ताकत मिली हो जिसका नाम है दुआ। जो कमाल की दुआएं आपके पास है ना, किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं, किसी कौम के पास नहीं। घबराहट होने लगे, परेशानी होने लगे, मसाइल में इंसान घिर जाए, तो इससे बेहतर नहीं है कि आप बस थोड़ी देर के लिए वक्त दें, कोई सी भी दुआ खोल लें, किसी भी मासूम की दुआ उठा लें, थोड़ी देर लौ लगा लें। इधर आपने लौ लगाई, वो तो कह ही रहा है कि आओ मेरे दरवाजे पर, तो मेरे नौजवानों कभी भी घबराना नहीं, परेशान ना होना। और यहाँ परेशानियां तो आती रहती हैं। कुवैत की जिंदगी जो है मरबूत है उन सब सारी चीज़ों से, उसमें हौसला भी नहीं हारना चाहिए। और दूसरे ये है कि हौसला जो दिलाने वाले अफराद है ना, उनको करीब रखिए। एक नुस्खा और भी है मेरे पास, हाँ, इसको भी गौर से सुनिए मेरे नौजवानों। ये सब बातें हैं हर खतीब नहीं सुनाता, क्योंकि जाकिरी के फन से जरा ये मुख्तलिफ चीजें हैं। हौसला बुलंद करने वाले, हौसला बढ़ाने वालों को, हौसले में ताकत देने वालों को करीब रखिए, न खुद बस हौसला के पास जाइए, न उसे आने दीजिए, क्योंकि उससे मशवरा भी लेंगे ना तो बस हौसले के साथ वो मशवरा देगा। वो ऐसा मशवरा देगा कि क्योंकि उसके पास खुद हिम्मत नहीं तो आपको क्या हिम्मत देगा।
किसी हिम्मत वाले के पास जाइए ताकि वो हिम्मत जो है आपको दे, आपको बूस्ट करे, आपको ताकत दे। और माशाल्लाह से मेरे नौजवान जो आते हैं, बरस से आ रहे हैं आप सब, तो जुम्मे का दिन खास तौर से दोपहर का वक्त दुआ की कबूलियत के लिए इससे बेहतर वक्त नहीं। हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह को गरीब की रहमत करे, तो वो जब जुम्मे की नमाज, अलैकुम सलाम, जब वो जुम्मे की नमाज पढ़ा के आते थे तो अक्सर हम लोग देखते थे कि उस वक्त वो मफाती लेके बैठते थे। उस वक्त वो मफाती खोल के बैठते थे, तो हम लोग सोचते थे कि यार ये तो सुबह में भी पढ़ सकते हैं, शाम में ज्यादातर तो लोग, क्यों बचपना था उस वक्त, नहीं इतना इदराक नहीं था, तो सोचते थे कि तो दुआ का वक्त तो सुबह को है, दुआ का वक्त शाम को है, ये इस वक्त आके 3 बजे 4 बजे ये क्या है। अब जब बाद में जब थोड़ा सा बड़े हुए, उस दुआ की इफादियत, उस दुआ की खासियत जब देखी, तो उसमें दुआ कि ये अगर दिन ढले पड़ ही जाए, जब सूरज जो है गुरूब की मंजिलों में आ रहा हो, तो और ज्यादा मकबूल है जुमे के रोज। अब फिर बाद में समझ में आया कि वाकई वो उस वक्त क्यों बैठा करते थे। आप यकीन जाने कि यहाँ भी उस दुआ के लिए यही वक्त मुकर्रर किया गया। अक्सर लोग यहाँ भी सवाल करते थे कि मतलब ये जुम्मे के दिन आप लोग तो सुबह में पढ़ी जाने वाली, हाँ सुबह में पढ़ी जाने वाली दुआ है, ये दुआ है, यकीनन है, इसमें शक नहीं है कि सुबह में उसके पढ़ने की इफादियत और उसका सवाब है। लेकिन एक तो हमारी मस्जिद का टाइम यही होता था, तो दुआ का भी टाइम यही रखा गया। लेकिन जब बाद में मैंने गौर किया, नहीं हमारा भी ये वक्त जो है बिल्कुल खास वक्त है दुआ, ऐसा नहीं हटके नहीं था वो। अच्छा, हालांकि बाद लोग एतराज करते थे, उनको हमने समझाया भी कि नहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुबह को पढ़ी जाती है, ये इस वक्त भी, क्योंकि हमारे उस्ताद ने बचपन में तो उस वक्त नहीं समझ में आता था कि ये क्यों पढ़ना है इस वक्त। लेकिन बाद में जब रवायतों में देखा कि नहीं ये भी वक्त है जब सूरज ढल रहा हो। और आप जब देखेंगे कबूलियत दुआ में, तो उसमें एक चीज है कि जब सूरज ढल रहा हो तब दुआ की जाए। जैसे बारिश जब तेज हो तब दुआ की जाए, अपने बारा हो तब दुआ, जो मौके बताए गए उसमें एक ये भी है कि जब सूरज ढल रहा हो तब दुआ की जाए। तो जुमे का दिन तो इससे बेहतर हो ही नहीं सकता है। अल्लाह हम सबको ये तौफीक करामत फरमाए कि हम इस जुमे की इन दुआओं से सिर्फ फैज़याब न हो, हमारी जिंदगी में उसके असरात दिखने लगे। और जैसे जैसे आपकी जिंदगी में असरात दिखेंगे इंशाअल्लाह ताला दुआ से और करीब तक होते जाएंगे। तो बहरहाल यहाँ आने का एक अहम मकसद ये भी था जुमे के दिन कि खास तौर से कि दुआए नुतबा में शिरकत और वो बरकत जो है हासिल हो। अल्लाह तमाम मोमिनीन को ये तौफीक करामत फरमाए कि जुमे के दिन खास तौर से दुआए नुतबा जो है वो फरामोश न करें। आयत मैंने बड़ी मशहूर दुआ की तो बात ज़हन में आ गई, लेकिन जो आयत मैंने पढ़ी इस वक्त आपकी खिदमत में वो सूरह दहर है। और कौन सा ऐसा मोमिन है जो सूरह दहर से वाकिफ नहीं है? वो बाफजीलत सूरा कि जो कि सिर्फ और सिर्फ चाहने वालों के लिए नहीं, सारी इंसानियत के लिए कर्ज बन के आ गया। खुद भूखे रह के यतीमों को खाना खिला देना, पेट भरा हुआ हो और घर में हो सब कुछ और उसके बाद किसी को खाना खिला देना, वो तो एक अलग बात है, वो तो हम सब कर लेते हैं। लेकिन खुद पेट पे पत्थर रख के किसी यतीम की हाजत पूरी कर दे, किसी मिस्कीन की हाजत पूरी कर दे। अब ऐसे में अगर सूरा नाजिल होगा तो क्या तेवर होंगे। सबसे पहली आयत उसकी सूरह इंसान भी इसको लिखा गया, उसी कुरान में जाके आप देखेंगे सूरह दहर, तो यहाँ जो नुस्खे हैं उसमें सूरह इंसान लिखा हुआ है और ज़ाहिरी की इब्तिदा भी उसकी उसी आयत से भी हुई। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। इंसान कहाँ की ख्वाब ख्याल में है, एक वक्त तेरे ऊपर ऐसा भी गुजर चुका है कि जो तो काबिले जिक्र शै था ही नहीं। आज बड़े बड़े नामों से तू जाना जा रहा है, आज बड़े बड़े खिताब तुझे मिल रहे, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था तू काबिले जिक्र भी नहीं था, काबिले जिक्र नहीं था। अब इसको मैं कैसे तशरीह करूंगा आपकी खिदमत में, अब ऐसे ही समझ लीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए आपके पास जाऊं, आप कहेंगे भी चाय पी के जाइएगा, चाय पी के जाइए, तो चाय की पत्ती घर में है, पानी घर में है, दूध घर में है, लेकिन जब तक वो तरतीब में नहीं आएगी चाय नहीं कहलाती। हालांकि चाय की पत्ती तो रखी है ना, जब तक आप उसको चूल्हे पे उबाल नहीं लेंगे तब तक वो चाय नहीं कहलाएगी। हालांकि मैं कहने लगूं आपके पास जो चाय ला के दे दीजिए,
मौलाना अभी चाय कहाँ है? चाय की पत्ती है, अभी वो चाय नहीं मुकम्मल हुई। यानी इसका मतलब कि अभी अज्जा जब तक बिखरे हैं चाय का वजूद नहीं है। हाय चाय, लेकिन उसको चाय का नाम कब दिया जाएगा? ये तरतीब में आ जाएंगे। उसी तरतीब को कुरान बयान कर रहा है। एक वक्त ऐसा भी था कि जब तू काबिल जिक्र शय था ही नहीं, ये तो हम थे कि तुझे लकद खलकनल इंसान अभी अहसन तकवीम की अगर तू समझ रहा है कि आज तू बड़े बड़े नामों से जाना जा रहा है, तो एक जमाना ऐसा तेरे ऊपर गुजर चुका है, तू काबिल जिक्र भी नहीं था। अच्छा, ये इंसान क्या है, जरा कभी गौर किया आपने? दुनिया में उसकी जितनी भी मखलूकात हैं, अल्लाह की शान के आप चाहे जितने कसीदे पढ़ें, जितने भी मखलूकात हैं, जितनी भी मखलूकात हैं, जिसको आप देख रहे हैं उसी को देख रहे हैं। मेरे जुमलों पे गौर कीजिएगा और पूरे वसूख से ये बात कह रहा हूं, जरा सा गौर से इसको सुनिएगा। मसलन जानवरों में आप हाथी को अगर देख रहे हैं तो हाथी को देख रहे हैं। मैं बिल्कुल पूरे यकीन से कह रहा हूं कि अगर आप हाथी को देख रहे हैं तो हाथी को देख रहे हैं। आपकी नजर घोड़े पे है तो घोड़ा है, ठीक। अब जानवरों में जितने भी जानवर हैं, कहां तक मैं जानवरों के नाम लूं? सब फेरी साहब तैयार कर लीजिए। जितने भी जानवर हैं जिसको आप देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं। नबातात में आ जाइए, जितने भी फूल के अक़साम हैं, जितने भी फूलों पे नजर जा रही है, अगर बेले को देख रहे हैं तो बेला है भी, चमेली को देख रहे हैं तो चमेली है, गुलाब को देख रहे हैं तो यकीनन वो गुलाब है। ठीक है, जिस पर आपकी नजर है और जो चीज है, जो शय है, आपको वही नजर आ रही, बिल्कुल है। लेकिन इसके बरखिलाफ मखलूकात में वाहिद हजरत इंसान है कि आज तक समझ ही में नहीं आया कि इंसान कौन सा इंसान है। मैं एक जुमला ऐसा दोहराता हूं कि आपको कहेंगे कि वाकई है तो, और वो भी सोशल मीडिया का आपका जुमला है, बड़ा मुझे पसंद आता है। कोई जो जुमला पसंद आता है तो मैं उसे शेयर भी कर देता हूँ, वैसे भी मुझे पसंद आता है। कहता है यार हर चीज का तो पता हो गया। जैसे मैंने कहा ना कि आप अगर किसी चीज को देख रहे हैं, जानवर को देख रहे हैं, तो हाथी को देखा तो हाथी को देखा, लेकिन इंसान के बारे में हुसूस से नहीं कह सकते कि मैंने इंसान ही देखा है। कहते ये बाजू में बैठा हुआ इंसान ही है या कोई सांप है? इंसान ही है या कोई दरिंदा विंदा फाड़ के खाता है? क्योंकि अक़साम है इंसानों की, है ना इसी दुनिया में। जालिम भी इंसान है, आदिल भी इंसान है, रहमदिल भी इंसान है, खूंखार भी इंसान है, सखी भी इंसान है, वकील भी इंसान है, आलिम भी इंसान है, जाहिल भी इंसान है। ये सब इंसानों की अक़साम है ना इसी दुनिया में। कितने अक़साम हो गए, मैं तो गिनाने आऊं तो आधी मजलिस तो इसी में निकल जाएगी कि इंसान कितनी अक़साम है। अब वो कौन सा इंसान कौन है मुझे नहीं पता, मुझे सब है इंसान, मगर लेकिन इन अक़साम में बटे हुए हैं। अब इसको अगर कंट्रोल करना हो तो कौन करेगा? इंसान को तो कंट्रोल कर नहीं सकता। अब ये तो वही कंट्रोल करेगा जिसने इसे बना के भेजा है। ये वही कंट्रोल करेगा जिसने इसे बना के भेजा है। अब समझ में आया कि जिसने बना के भेजा है उसने कंट्रोल करने के लिए सिर्फ एक चीज रखी है जिसका नाम है नमाज। चाहे जितना बड़ा सरकश हो जाए, चाहे अपने से बाहर हो जाए, लेकिन सजदा जब सर दे तो सजदे में झुकता है ना, कितना भी सरे गुरूर उसका बुलंद हो, गुरूर चकना चूर हो जाता है। नमाज गुरूर शिकन है, नमाज गुरूर शिकन है, और बाजमात नमाज और ज्यादा गुरूर को। आप कहेंगे और ज्यादा क्या मतलब है? जमात की क्यों फजीलत है? ऐसे फुरादा पढ़े सवाब और है, जमात में शरीक हो जाए सवाब और है। जैसे जैसे जमात की तादाद बढ़ती जाती है वैसे सवाब बढ़ता जाता है। तो भाई नमाज तो वही है जो आप पढ़ते हैं घर में, वही जो है इस्माम साहब भी पढ़ाएंगे, ठीक हो, किरात जरा अच्छी होगी उनकी, है खुशबू से पढ़ाएंगे, वो सब अपनी जगह पे है, लेकिन जमात का सवाब बहुत ज्यादा है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जहां नमाज गुरूर जिक्र है, वहां जब जमात से पढ़ी जाती है तो और गुरूर चकनाचूर होता है। आप पूछेंगे वो कैसे? आगे सफों में खड़ा हुआ,
अगर कोई गरीब है तो उसी के कदमों में किसी अमीर का सर जो है झुका हुआ है, जो किसी गरीब को एक लम्हे के लिए बाजू में बिठाना नहीं चाहता, अपना सरे हुर उसके कदमों में रखे हुए हैं। नहीं कह सकता कि मुझे क्यों उसके पीछे लगा दिया भाई, बल्कि दुआ करता रहता है, या अल्लाह इस गुरूर को हमारे दिल से निकाल दे, ये जो खबासत है हमारे दिल से निकल जाए। इसका मतलब यह है कि नमाज फकत रुकू और सजदे का नाम नहीं है, वो सिफत जो हमें किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होने देती, उसको भी वो चकनाचूर कर लेते हैं, उसको भी चकनाचूर कर देते हैं। तो ये है वो अक़साम में जो मैं बता रहा हूं ना कि ये हजरत इंसान है, वही जो सफेद नमाज में खड़ा हो वो भी इंसान है, और वही इंसान जो नमाज में खड़े हुए लोगों के जूते उठा के लेके चला जाए वो भी इंसान तो नहीं कर सकते। होता तो यही है ना, इंसान वो भी है जो लेके गया, एक वो है जो बेचारा अल्लाह की बारगाह में खड़ा हुआ है। इसी दुनिया में है ये सारी। कैसे तमीज की जाए? तमीज कैसे की जाए? उसकी एक ही वो है कि अपनी कदर पहचानो, अपनी अजमत पहचानो। आवाज़ आई लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन, तुम बहुत सस्ते थे, मैंने तुमसे ज्यादा सुपीरियर किसी को बनाया नहीं। जब तुमसे ज्यादा सुपीरियर किसी को नहीं बनाया तो बिल्कुल सस्ते में अपने को पेश मत करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नफ्स दिया तो उसकी इज्जत भी दी, नफ्स दिया तो उसकी इज्जत भी दिया। जुमला सुन रहे, इज्जत नफ्स। इज्जत नफ्स क्या है? अपना मेयार, अपनी क्वालिटी, अपना वजूद, जिस तहत तुम बनाएगा हर एक के सामने सरे न्याज न कम कर देना। तुम्हारा सरे न्याज बहुत बुलंद है, कहाँ झुकना है? उस बारगाह में झुकना है जिसने वादा किया जितना तुम मेरी बारगाह में झुकते जाओ तो उतना ही तुम्हें बुलंद करते जाएंगे, जरूरत नहीं आएगी। मगर ये यकीन जरा मुश्किल से पैदा होता है, कभी इस दरवाजे पे, कभी उस दरवाजे पे, कभी इनके पास, कभी उनके पास है। थोड़े थोड़े मसाइल होते हैं जिंदगी के, उनके पास ये काम, उनके पास ये काम, उनसे हो जाएगा, अच्छा उनसे जरा वास्ता लगा लो। वो सबसे बड़ा जो वास्ता है उससे कतरा कतरा के चल रहे, इनसे हो जाएगा, उनसे हो जाएगा। अरे ये अगर करेंगे तो हो सकता है कि पलट के थोड़े दिन के बाद कह भी दें, भूल गए हमने तुम्हारे ये काम किया था, भूल गए मैंने तुम पर ये एहसान किया था। अरे वो तो कभी पलट के भी नहीं कहता कितने एहसानात कर डाले, कभी तो घुस जाओ मेरी बारगाह में, तो चले लिहाज कम कर दो, कभी तो मेरी बारगाह में हाजिरी दे दो। कभी नहीं पूछा उसने, कभी नहीं पूछा। अब ऐसे में अजीजों सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, एहसान का लफ्ज है दरमियान में आ गया। और वाकई हमारी जिंदगियों पर इतने एहसानात हैं, इतने एहसानात उस खालिक को मालिक के। जैसे शेख सादी ने क्या कहा था, क्या कहा था? एक सांस जो आती है और एक सांस जो बाहर जाती है, इसका भी हक के शुक्र अदा नहीं कर सकते। अगर शुक्र करने के लिए बैठे हम, जब शुक्र लिल्लाह कर लेते हैं सजदे में जाके 3 मरतबा, अरे वो 3 मरतबा कह देने से शुक्र नहीं हो जाता। 3 मरतबा कह के क्या करेंगे? कहते एक सांस जो आ रही है और एक जो जा रही है, इसका भी तो हक से शुक्र नहीं अदा हो रहा है। क्या शुक्र अदा करें? अल्लाह हो, किसी ने किसी के साथ थोड़ी सी भी नेकी कर दी, कोई खैर कर दिया, थोड़े दिनों के बाद यार नहीं तुम्हें, मैंने तुम्हारे साथ ये किया, भूल गए। इसीलिए शायद मौला ने ये मिजाज बहुत पहले देख लिया था, 1400 साल पहले। फरमाते हैं इत्तक़ि शर्र मन अहसनत इलैह, जिसके साथ एहसान करो उसके शर से भी बचो। मामला दोनों तरफ से है, कभी कभी एहसान करने वाला जतलाता है, कभी जिसके साथ एहसान हो वो पलट जाता है। तो ऐसे में हो क्या? कहा बस नजर रखो, क्योंकि तुम्हारे पास जैसे वसीले हैं किसी के पास नहीं। समझने के लिए तुम्हारे पास अल्लाह ने जो वसीले दिए किसी के कायनात में किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं।
अब मैं बड़ा रास्त आपको जुमला हदिया कर रहा हूँ। एहसान का जो मतलब हम लोग समझते हैं उसका मतलब नहीं है, उस मतलब नहीं होता है। एहसान का मतलब आप हम यही समझते हैं ना, किसी ने हमारे ऊपर कोई नेकी की है, उसने हमारे ऊपर एहसान किया है। अब पलट के हम भी उसके साथ कुछ कर रहे हैं तो हम एहसान कर रहे हैं ना, ये तो हम बदला दे रहे हैं, ये हम बदला दे रहे हैं, बल्कि एहसान नहीं कर रहे हैं, तो हम पलट के बदला दे रहे हैं। ये कौन सा एहसान हुआ? का नेकी में सबकत का नाम एहसान है। जो पहल कर ले गया वही है एहसान। आपने जो पलट के उसके साथ किया वो एहसान नहीं होता, वो तो बदला होता। अच्छा एक चीज और है, कभी कभी ये भी गलत फहमी होती है। हमें आपकी जरूरत है, ठीक है, जब जरूरत है तो ये तो हमारी जरूरत है, हम कैसे आपको बुलाएं, कैसे आपको अपने यहाँ जो भी आपको सर्विस लेनी है वो कराए, हमने उजरत दी। अब ये उजरत उस सर्विस की हुई, ये उजरत जो है उस सर्विस की हुई। भाई इलेक्ट्रीशियन को आप बुलाते हैं, कहते भैया एक ठीक कर दो, बाद में उसको उजरत देते हैं, तो ये एहसान करते हैं आप? ये एहसान करते हैं कि उसके ऊपर कौन सा एहसान किया? बल्कि बर्वक्त आके उसने आपका काम किया, उसने आपके साथ एहसान किया। रात को 12 बजे आपकी लाइट खराब हुई है और आपने टेलीफोन किया, वो आ गया दौड़ता हुआ, क्या 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 मामला है? कहा साहब ये लाइट खराब हो गई गलती, कोई बात नहीं, कोई बात कर दिया। अब उसके बाद उसकी सर्विस दे दी आपने, जाहिर है कि उसने उजरत ली है। अब आप कल को सुबह को उठ के कहें कि साहब वो ऐसा है ना, फला जो आए थे रात में उनको मैंने इतने रुपए दिए, तो ये एहसान तो नहीं किया आपने, जिसको आप तो उजरत लिया उसने, ये उजरत लिया उसने, एहसान नहीं है। अब एहसान कैसे होता है? कहा नेकी में सबकत का नाम एहसान है। एहसान कैसे होता है? कहा साहब एक टाइम ऐसा था कि एक जगह गए आप, कहीं किसी ऐसी जगह जहां आपके पास 2 दीनार कम होने की वजह से वो काम नहीं हो रहा था। फर्ज करें 2 दीनार कम थे और उस जगह पे खड़े खड़े आप इधर उधर देख रहे थे, अरे काश कोई होता तो ये काम मेरा हो जाता यार। 2 दीनार कम पड़ रहे, 2 दीनार कम पड़ रहे। एकदम से दिखाई दे गए रजा भाई, अमर रजा भाई ऐसा ऐसा मामला फंस गया, वो 2 दीनार जो है वो कम। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मामला नहीं, 2 क्या 5 दे दूंगा मैं, कोई मसला नहीं। हालांकि 2 दीनार जो है यहाँ की जबान में बिल्कुल कोई उसकी अहमियत नहीं है, लेकिन ये ऐसा एहसान है कि मैं नहीं भूलूंगा, ये इनका एहसान मैं नहीं भूलूंगा। हालांकि जाते ही मैं इनको वापस करूं अपनी मंजिल पे पहुंच के, रजा भाई दीजिए, नहीं बोलना कोई बात नहीं दीजिए, लेकिन ये फिर भी जो 2 दीनार उस वक्त निकाले हैं वो एहसान है, कितना भी मैं इनको बर वक्त दे दूं, फौरी इनको दे दूं, ये एहसान है, एहसान इनका, वो एहसान मैं मानूंगा। लेकिन मैं कोई काम करूं इनके पास, ये हमें दे कोई चीज उसकी उजरत के तौर पे, तो ये एहसान नहीं होता ही, ये तो उजरत देंगे हम। लेकिन ऐसे वक्त में अब मैं अपने नौजवानों को मुतवज्जे कर रहा हूं कि पूरी कायनात पर, बल्कि मैं कहता हूं उम्मत मुस्लिमा पर 2 हस्तियों ने एहसान किया है, 2 हस्तियों ने एहसान किया है। आज सारे मुसलमान इस्लाम के नाम पर जो भी कर रहे हैं वो इस्लाम के नाम पर करके अपनी आकिबत बना रहे, एहसान नहीं कर रहे। अपनी आखिरत बना रहे, अपने लिए जन्नत की राह हमवार कर रहे हैं, वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हाँ, एहसान जिसने किया है उसका नाम है खदीजा और अबू तालिब। ये जितनी भी उम्मत मुस्लिमा कर ले, ये एहसान नहीं होता ये कि हम तो इस्लाम के लिए ये कर रहे हैं और ये उन्होंने इतना कर दिया, वो फातिह इस्लाम हो गए। अरे होंगे वो। अच्छा फिर लोग पूछते हैं कि साहब उनकी कितनी दौलत थी? आप कहते हैं मलिकतुल अरब खदीजा के पास, जनाब खदीजा के पास इतनी दौलत थी, कितनी दौलत थी? भैया कितनी दौलत थी ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि उनके बैलेंस शीट मैं तो नहीं बनाता था, अकाउंटेंट मैं तो नहीं था, कोई बता नहीं सकता कि मतलब फिगर की कितनी दौलत थी, लेकिन थी तो इतनी मालदार थी। बस एक हिसाब में जरूर बता सकता हूँ कितनी मालदार थी। अगर आप मुझसे पूछें कितनी दौलत थी, हालांकि इस दौर में कुछ ऐसे भी पैदा हो गए हैं कि उस दौलत पे भी एतराज करते हैं, इतनी मालदार नहीं थी जितनी मालदार बताया जाता है, तो आप बताइए
मालदार थी? आप बताइए कितनी मालदार थी? अब अगर आप मुझसे पूछे कि कितनी दौलत थी, एक मोटा सा हिसाब मेरे नौजवानों याद रखिए कि कितनी दौलत थी। आज किसी बिजनेस में आप 10 लाख रुपए लगाए, कितने? 10 लाख। आज से 4 साल बाद, 5 साल के बाद वो 10 लाख का बिजनेस आपका 20 लाख का हो जाएगा। अब आपके रुपए की वैल्यू 1 रुपए पे 2 रुपए हुई या नहीं हुई? डबल हुई ना वैल्यू। अब मालूम हुआ कोई पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि अब मेरा बिजनेस जो है डबल हो चुका, उसकी वैल्यू जो है अब इतनी हो चुकी। अगर खसारा हो रहा है बिजनेस में, 5 लाख जो लगाया था अब वो बढ़ के वो 2.5 लाख में तब्दील हो गया, तो आप कह सकते हैं कि भाई खसारा हो गया इतने सालों में। अब वैल्यू जो थी वो 1 की आधी हो गई है मेरे बिजनेस की। मुझे नहीं मालूम कि कितनी दौलत थी, लेकिन इतना तो अंदाजा हमें भी है कि आज पूरी कायनात में जो उम्मत मुस्लिमा बिखरी हुई है, उसके पास जितनी दौलत है सबका हिसाब लगा ले, जनाब खदीजा का माल आज इतना बढ़ चुका है। क्योंकि जब मुसलमान मफलूकुल हाल था, मुसलमान फाकों से मर रहा था, मुसलमानों के चेहरे पे जर्दी आ गई थी, और हुजूर ने जब देखा कि इनके तो हालत ये हो गई है कि ये तो चलने के भी काबिल नहीं है, आके एक दिन सर झुकाए बैठे। जनाब खदीजा ने देखा, बीवी ने जैसे चेहरे पे नजर की, आज चेहरा कुछ मुतगय्यर लग रहा है, आज चेहरा कुछ मुतगय्यर है, आखिर वजह क्या है? खदीजा, लोगों की भूख हमसे देखी नहीं जा रही, इनके भूखे चेहरे हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। बीवी ने एक मर्तबा फरमाया, इसमें काम करने की कौन सी बात है, ये दौलत किसके लिए है? अब जब बोला आवाज, लाओ जितने भी दौलत रखी हुई ला शंबा लगा। तारीख कहती है कि इस कदर सोना और चांदी ऐसा ढेर लग गया कि हुजूर उसके पसे पर झुक गए। ढेर लगने का मतलब समझ रहे ना? अब ये पिलर है और गहरी की जो इसके पीछे छुप जाए, जिस हाइट में है पिलर ये, और पूरी दीवार सी बन जाए, उधर हम देख भी ना पाओ कितने लोग बैठे। और फरमाया, ले जाइए, किस दिन काम आएगी, ये किस दिन काम आएगी? अब समझ में आया कि उस वक्त जब जीरो था मुसलमान, जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, और आज अगर मिलीनियर बन के टहल रहा है तो किसकी दौलत है जो बढ़ी आज? अब पूछिए जरा कि कितनी दौलत थी उनकी। वही सरमाया जो पहले दिन लगा था, आज इस काबिल हुआ कि आप मुस्कुरा मुस्कुरा के कह सके कि भाई मुसलमान तो मालदार हो चुका है, मुसलमान तो मालदार हो चुका है। लेकिन अब जाहिर है जनाब खदीजा की जब बात आती है तो एक चीज नौजवानों को खास तौर से, अब जाहिर है कि ये भी सुनते हैं, कहीं भी पढ़ भी लेते हैं कभी, कि जिस वक्त शादी हुई, अच्छा ये भी जब मौजूदा है जनाब खदीजतुल कुबरा की जिंदगी का 25 साल से ज्यादा का अरसा गुजारा हुजूर के साथ। कितने साल? 25 साल से ज्यादा का अरसा गुजारा, और इस अरसे में बिला शिरकते गैर रही, किसी भी ज़ौजा की शिरकत नहीं है। इस पूरे अरसे में कोई दूसरी ज़ौजा की शिरकत नहीं है। बाद वाली जितनी भी आई, सबके लिए कुरान में अगर कहीं जिक्र भी है ना, तो या सेगे जमा के साथ है या सेगे तस्निया के साथ है। अरबी जबान की खूबी बताए आपको, दूसरी जबानों में या तो वाहिद है फिर उसके बाद जमा है, चाहे उर्दू हो, फारसी हो, इंग्लिश हो, वाहिद और जमा। अरबी वाहिद जबान है कि जिसमें वाहिद के बाद तस्निया और उसके बाद जमा, 1 2 के लिए तस्निया, फिर चाहे जितने हो जाए उनके लिए जमा। तो जहां जहां भी तवज्जो चाह रहा हूं कि बीवियों का तस्करा आया है,
वहां है तस्नीय का सेगा या जमा का सेगा। वाहिद शहजादी है कि जिनके लिए मिलता यह है कि 25 साल में किसी की भी शिरकत नहीं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह भी फजीलत में किसी को शरीक नहीं बनाना चाहता। शिरकतें हैं, किसी को भी नहीं रखा, किसी को भी नहीं। अब आप देखा जब लोगों ने कि अच्छा ऐसी फजीलत है, कोई बात नहीं है। अब इसमें अब वो तारीख, अच्छा फिर वो तारीख का मामला ऐसा है कि फिर बड़े यानी उससे शद्दोमत से लोग आते कहते लिखा तो है, किताबों में तो मिलता है, ये चीज किताब में तो लिखी है राइटर ने, और फला फला किताब में लिखी हुई है। भैया ये इल्मी एक्सीडेंट है, बिल्कुल नया जुमला है ना, इल्मी एक्सीडेंट। एक्सीडेंट देखा है? खुदा ना करे देखें आप एक्सीडेंट। बहरहाल कभी कभी खबरों में ये बात सुनते हैं कि भाई फला जगह, यहाँ तो नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अल्लाह महफूज करे इन सब बलाओं से, लेकिन कभी हो ही जाता है ऐसा जहाँ हाई स्पीड गाड़ियां चलती हों हाईवे पे। तो आपने सुना भी है, कभी कभी देखा भी होगा, हो सकता है टीवी पे, एक साथ 15 गाड़ियां, 16 गाड़ियां जो है टकरा गई, क्योंकि हाई स्पीड में जाहिर सी बात है वो टकराना कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सब स्पीड से ही आ रहे हैं ना। तो एक बात मुझे बताइए तय करके कि इन 16 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ या एक गाड़ी का हुआ? 16 का हुआ। क्या कहने, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह जी। हाँ जरा सोच समझ के जवाब दीजिए। ये जो एक्सीडेंट की आपने खबर सुनी और देखा आपने 16 गाड़ियां जो है लग गई, ये 16 का एक्सीडेंट हुआ या एक का हुआ? एक की वजह से हुआ ना, बाकी तो बेचारे वहां के पीछे पीछे जो है वो। इसको मैं मिसाल में यूं ला रहा हूं कि इल्मी एक्सीडेंट है, किसी एक ने लिखा, उसी को देख के इन्होंने भी लिख दिया, उसी को देख के इन्होंने भी लिख दिया, उसी को देख के इन्होंने भी लिख दिया। ये है इल्मी एक्सीडेंट। एक ने लिख दिया, वो किस वजह से लिख दिया उसको पता ही नहीं मैंने किस लिए लिख दिया, लेकिन यहाँ जो है वो सबने लिखना शुरू कर दिया। क्या वो क्या हुआ है, आप भी पढ़ लेते होंगे शायद कहीं लिखा हो तो, और सुन भी लेते हैं। हुजूर की उस वक्त उम्र मुबारक कितनी थी साहब? 25 साल जब शादी की। और जनाब खदीजा कुबरा कितने साल की? 40 साल। और इसको मेरे ख्याल से दुश्मनों ने कभी कभी क्या होता है ना कि इतना ज्यादा आम करो, इतना ज्यादा आम करो, इतना ज्यादा इसको दोहराओ, इतना ज्यादा कहो कि कभी कभी अपने लोगों को भी वो ना लगे कि ऐसा कुछ मतलब हो। ठीक है भाई, हाँ सर भी निकलने लगे, आदि हो जाए जहन इस बात का, कबूल करने लगे। और वाकई यही हुआ, उसको कबूल भी करने लगे लोग कि हाँ भाई 40 साल की थी, वो 40 साल की थी। लेकिन मैं तो अक्सर एक बात कहता हूँ, दोहराता हूँ, जब मैं तारीख पर कोई बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि तारीख का सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, बल्कि दिमाग अप्लाई करना जरूरी है। हर बात जो लिखी हुई है जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल सही हो, कभी दिमाग से निकाल लीजिए ऐसा क्यों है। कितना डिफरेंस हुआ इसका? अगर हुजूर की उस वक्त उम्र मुबारक 25 है और बीवी की जो एज बताई जा रही है वो 40 है, तो कितना डिफरेंस है? डिफरेंस 15 साल, पूरे 15 साल। किस माहौल में 15 साल का एक डिफरेंस बताया जा रहा है? अरब के माहौल में। जबकि आपको मालूम है यहाँ शादियां किस एज में होती थी और क्या माहौल था। अब ऐसे में इतना लंबा डिफरेंस, ये ऐसा क्यों? ये क्यों बार बार इसको दोहराया जाता है कि ये चीज? मैं कहता हूं कि कराइन ये बताते हैं, हालात ये बताते हैं कि बिल्कुल जिसने भी लिखा उसने इल्मी मिस्टेक की और उसके बाद सबने वो मिस्टेक की। अब वो पूछने का पूरा हक है कि वो कैसे। अब मैं आपको बताता हूँ, एक सलवार भेजे। आपने सलवार पढ़ ही ली है तो आपसे गुजारिश है, अल्लाह ताला आपको सबको सलामत रखे और आप सबके रिस्क में बरकत इनायत फरमाए। और जहाँ भी रहे, जिस जगह भी रहे, अगर मसाइल में कोई परेशानी में घिरा हुआ है, सबके महल्ला में मुश्किलात मौलाए कायनात तो सब परेशानी आपकी दूर हो। सोसाइटी हमेशा ये एहतिमाम पूरे साल करती रहती है, अल्लाह आप सबके रिस्क में बरकत इनायत फरमाए। अच्छा ठीक, अच्छा सलवार भेजे, सलवार भेजे। अब जो हालात और कराए हैं उससे दरअसल अंदाजा कीजिए कि ये जो शादी का मरहला है
तो जाहिर है कि बात आगे तो बढ़ी होगी, तो कैसे आगे बढ़ी शादी के लिए जो आगे बढ़ी बात तो कैसे आगे बढ़ी? आपको ये भी मालूम है, हो सकता है जो लोग तारीख देखे हो या सुने ही हो, कि हुजूर जनाब खदीजा का माल तिजारत लेके जाते थे। क्या लेके जाते थे? माल तिजारत लेके जाते थे, यानी वो जो बिजनेस था उनका, उसमें हुजूर शरीक थे। बीवी का एक गुलाम था जिसका नाम मैसरा था, और बीवी जब वो वापिस आता था, मैसरा टूर से जब वापिस आता था तो मैसरा से पूछती थी, हाँ मैसरा क्या हुआ, कैसा रहा बिजनेस? और जाहिर उस वक्त उन्होंने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, तो हुजूर के बारे में पूछती थी, उनके साथ सफर तुम्हारा कैसा रहा? अब मैसरा बयान करता था, बीवी आपने जिनको अपना माल तिजारत दिया हुआ है, कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि आज तक हमारी तो समझ में नहीं आ रहा ये कौन है। हाय हाय हाय, मेरे नौजवानों जाग के सुनना, मैं 2-4 मिनट की मैं तुम्हें तमाम कर रहा हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा किस आदमी को आपने मुंतखब किया हुआ है। कहा क्या देखा तुमने? कहा जब काफिला सफर जो है मतलब तैयार हो जाता है और सब चलने लगते हैं, अक्सर ये होता है कि धूप तेज होती है, सब पे तो धूप पड़ रही होती है, लेकिन इनके ऊपर एक काबू जो है वो चलता रहता है। और हम लोग कभी कभी ये समझते हैं कि इत्तेफाकन है ऐसा, तो हो सकता है कोई टुकड़ा आ गया हो, इनके ऊपर से गुजर रहा है। तो एक जगह जब काफिला ठहर जाता था तो मतलब हम तो ये करते थे कि उनको बातों में लेके थोड़ी दूर और लेके चले जाते थे कि शायद कि मतलब इधर से गुजर रहा है बादल तो इनके सर पे आया, जिधर लेके जाते थे उधर ही बादल गिरा जाता था। कहीं तो नहीं समझ में नहीं आ रहा है किस आदमी को आपने माल तिजारत दिया हुआ है। कहा एक जगह तो बिल्कुल हैरान हो गए, हम लोग परेशान हो गए। वो क्यों परेशान हो गए? कहा परेशान यूं हो गए कि एक ऐसी जगह पे हम लोग पहुंचे कि ना अब यहां से वापस जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं, पानी बिल्कुल खत्म है, अब प्यास जो है पूरी तरह से काफिले पर लगी। कहा किसी ने आके इनसे कह दिया कि पानी खत्म हो गया। काफी घबरा क्यों रहे, परेशान क्यों हो रहे? कहा कुछ दूर आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद कहा जरा हटाओ मिट्टी, और जो मिट्टी हटाई गई, बीबी मुझसे तो मतलब बयान भी नहीं हुआ कैसा चश्मा उसके अंदर से निकला। ऐसा मीठा पानी तो सहरा में मैंने कभी देखा ही नहीं। और उसके बाद सब सैराब हो गए, सब पी लिए, सबके जानवर पी लिए, और कुछ देर तक वहां आराम किए, फिर आगे बढ़ा काफिला। कहा उसके बाद ये तो मतलब ये मुसलसल रास्ते में होता रहा। फिर मैं देख रहा हूँ कि जब इस वक्त जहाँ पे ठहरने का है कि यहीं से मतलब तिजारत शुरू होगी, लोगों को बुलाया जाएगा, मतलब सौदा होगा। कहा कि और लोग जब जाते थे तो उनसे तो बाकायदा जिसे मोल भाव कहते ना होता था, लेकिन ये जब से गए हैं कोई कुछ कहता ही नहीं, जो ये कहते हैं बस वो खरीदार तैयार हो जाता है। ये सब चीजें हमारी तो समझ में नहीं आ रही। अच्छा बीवी कुछ नहीं कह रही, कुछ भी नहीं बोल रही। आपकी एक सहेली थी, अब सहेली का मतलब आप जानते हैं कि जाहिर है कि मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, एक तरीके से यूं कह लें कि हर बात बीवियों से शेयर करती थी। उनका नाम नफीसा था। कहते नफीसा जो थी वो जनाब खदीजा की चूंकि हालात वाकयात सब जानती थी। एक दिन असनाए राह हुजूर से उनकी मुलाकात हुई, तो नफीसा ने देखा, सलाम किया, कहा वापिस आ गए आप तिजारत के टूर से, सफर से? कहा कहा आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? आपने फरमाया हाँ। कहा मेरे ख्याल से तो अब तो तिजारत भी शुरू कर दिया आपने, कोई बात नहीं है, तो शादी का क्या ख्याल है? हुजूर ने कहा कि शादी दोनों ठीक है, होना तो है, इनकार नहीं किया, होना तो है, लेकिन जब कहा लेकिन जनाब नफीसा समझ गई। कहा कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसी जो आपके मेयार के मुताबिक हो? आपने फरमाया हाँ बिल्कुल, क्या कोई ऐसी है? तो जनाब नफीसा ने कहा भाई आपने कहा है तो कोशिश की जाएगी, वैसे जैसे मतलब कहा जाता है, लेकिन जिस तरीके का आपका मेयार है, क्योंकि जनाब नफीसा को भी मालूम हो चुका है मैसरा के जरिए, तो मेयार तो इतना बुलंद है तो जाहिर सी बात है कि काम मतलब वैसे ही होना चाहिए। अब जनाब नफीसा चली गई है कहीं। अब जब जनाब नफीसा चली गई तो अब हुजूर घर आए। घर आने के बाद दस्तरखान पे बैठे हस्बे मामूल। कौन सा दस्तरखान? आम दस्तरखान नहीं, जनाब अबू तालिब का दस्तरखान, जिसकी रोटियां आज तक आप खा रहे हैं, जिसका सदका आज तक आप खा रहे हैं। कहते हुजूर बैठे और मतबा मुखातब हुए, चचा आज नफीसा असमाइल आबिदी थी, वो ऐसा ऐसा कह रही थी,
اور جناب ابو طالب بالکل خاموش ہے، کچھ نہیں کہہ رہے کہ ٹھیک ہے تم نے کیا کہا، بہرحال جو بتا دیا خاموشی کے ساتھ سن دیا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ جناب ابو طالب نے دوسرے دن اپنی بہن صفیہ کو بھیجا یہ کہہ کے کہ صفیہ جاؤ اور یہ پوچھو، توجہ اس جملے پہ، یہ پوچھو کہ اگر ہم رشتہ لے کے آئے تو انکار تو نہیں کریں گی۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے کچھ رشتے گئے تھے، کچھ اشراف کے رشتے گئے تھے جس کا انکار ہو چکا تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ کس کے رشتے کے انتظار میں تھی جناب خدیجہ۔ کہتے ہیں کہ جناب صفیہ گئیں اور یہ بیان کیا کہ ایسا ایسا ہے اور میرے بھائی نے بھیجا ہے۔ جناب خدیجہ نے اس بات میں سر ہلایا، جناب صفیہ چلی آئی اور آ کے بیان کیا۔ اب جو جناب ابو طالب پیغام لے کے گئے ہیں تو تاریخ میں لکھا ہے کہ اس وقت کعبے کے اطراف میں جتنے بھی اشراف قریش تھے سب کے سب جمع ہوئے اور جناب عباس ابن عبد المطلب نے ایک خطبہ پڑھا، خطبہ نہیں بلکہ پورا قصیدہ پڑھا، عربی کا وہ قصیدہ کہ جو آج بھی کتابوں میں درج ہے، جو صفات بیان کر رہا ہے بنی ہاشم کے اور خود حضور کے، اور فضیلت کا پورا قصیدہ جناب عباس ابن عبد المطلب نے پڑھا۔ اور اس قصیدے پر تاریخ نے یہاں تک لکھا ہے کہ سب نے اٹھ اٹھ کے داد دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ان کی عظمت کو پہچانتے تھے۔ اب جیسے ہی وہ قصیدہ تمام ہوا، ابھی حالانکہ اعلان رسالت نہیں کیا، جیسے ہی قصیدہ تمام ہوا آپ کے کزن ورقہ ابن نوفل وہ کھڑے اور انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ اگر ایسا رشتہ میری بہن کے لیے آئے تو آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ وہ سارے اشراف جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ارے بھیا اس میں کون سے جوڑ کی تو بات نہیں لگ رہی ہے، بھیا ایج ڈفرنٹ ہے۔ کسی نے بھی ذکر نہیں کیا اس بات کا، اور سب نے کہا کہ اس سے بہتر رشتہ کیا ہوگا؟ جو شرف تمہیں مل رہا ہے اس سے بہتر شرف کیا ہو سکتا ہے؟ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سب اس رشتے پر بھی متفق تھے، ان کی فضیلت پہ بھی متفق تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ بات اپنی جگہ رہ جائے گی کہ بھئی یہ ایج کا قصہ جو ہے اگر کسی تاریخ سے ایسے ثابت ہو جائے کہ صاحب یہ ایج جو فاصلہ دکھایا گیا یہ فاصلہ نہیں تھا، کیوں؟ اس وجہ سے ایک بات نفسیاتی میں کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے کہ مردوں میں یہ بات ہو یا نہ ہو لیکن عورتیں اس فرق کو سب سے پہلے محسوس کرتی ہیں۔ ابھی دو بچے آ رہے ہیں، آپ کے دوست بیٹھے ہو، ایک آپ کے دوست کا ہو ایک بچہ آپ کا ہو، 1 سال کا فرق ہو اور ایک آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے، آپ نے کہا کیا دونوں برابر کے لگ رہے ہیں، تو وہ دوست نہیں کہے گا کہ مطلب برابر کی 1 سال کا ہی تو فرق ہے، اور ٹھیک ہے جی ہاں واقعی دونوں برابر سے چلے آ رہے۔ لیکن اگر عورت بیٹھی ہو کوئی تو فوراً کہے گی نہیں بھابھی ایسا نہیں ہے، 1 سال کا فرق ہے۔ یہ نفسیاتی بات تو کہہ رہا ہوں آپ سے، عورتیں اس فرق کو نہیں وہ کرتی ہے، مرد تو کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ تو جناب صفیہ جب گئی تھی، چلیے ٹھیک ہے جناب ابو طالب نے نہ کہا ہو، حضور نے نہ کہا ہو، لیکن جناب صفیہ تو کہتی کہ بھائی ارے کچھ تو آپ تو خیال تو کریں، 15 سال کا فرق ہے، 1-2 سال کا نہیں بلکہ 15 سال کا۔ اور ہمارے یہاں کی زبان میں کہتے ہیں ارے بھیا یہ کون سا وہ ہے، کیا ہو گیا، یہ تو 15 سال کا فرق، کبھی بھی کوئی عورت تیار نہیں ہوتی۔ لیکن جناب صفیہ آنے کے بعد کہیں بالکل صحیح کیا، بالکل صحیح رشتہ ہے۔ اب جو تاریخ میں کھنگالا گیا تو معلوم ہوا کہ حضور جس سال اس دنیا میں تشریف لائے، اور جا کے دیکھیے اس میں دیکھیں گے آپ ان کی سوانحات، اس میں سن 1 عام الفیل لکھا کیا جاتا ہے، وہ سال جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے ذریعے کعبے پہ حملہ کیا وہی سال حضور کی ولادت ہوئی، اور اس ولادت کے سال سے 3 سال پہلے جناب خدیجہ اس دنیا میں آئی۔ کتنے سال کا فرق ہوا؟ 3 سال کا، اور 3 سال کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا، ہزاروں کیا لاکھوں شادیاں ایسی ہوئی ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آخری جملہ کہہ رہا ہوں، ہدیہ کر رہا ہوں، غور سے سن لیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میتھمیٹکس کا معاملہ نہیں ہے. یہ جو ایج کا ڈفرنس بتایا جا رہا ہے یہ میتھ کا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ کہیں کی فضیلت ادھر سے ادھر کی جا رہی ہے. پوری بات آپ نے کہہ دی. معاملہ کہیں سے اچھا پھر اس پہ بھی جب بات نہ بنی تو ایک چیز اور ہے جو ہمارے یہاں بھی کتابیں میں آتی ہیں. بعض لوگ بحث بھی اس پہ کرتے ہیں لیکن وہ بھی کہیں سے درست نہیں ہے. 4 بیٹیاں تھیں، ہے نا؟ 4 بیٹیاں تھیں اور آپ لوگ ایک کو مانتے 3 کو نہیں مانتے. ارے بھیا ہم نے ماننے میں کہاں کمی کی؟ ہم نے تو ائمہ کے اگر معصوم بیٹوں کو مانا تو ان کی اور بھی اولادوں کو ویسے ہی عزت دی. اگر نبیوں کو مانا تو ان کی اولادوں کو بھی ویسے ہی عزت دی. ایسا تھوڑی ہے بھائی. جتنے بھی نبی زادے ہیں یا جتنے بھی امام زادے ہیں ان کی قبریں ہیں ایران میں، عراق میں، کہیں بھی آپ چلے جاتے ہیں تو کیا ان کی قبروں پہ نہیں جاتے؟ ٹھیک ہے معصوم کا مرتبہ آپ نہیں کرتے لیکن جو ان کی اور غیر معصوم بیٹی ہیں ان کی بھی ویسے عزت کرتے ہیں. تو اگر حضور کی یہ بیٹیاں اور بھی ہوتی تو کیا ہم ان کو عزت نہ کرتے ہیں؟ کسی گوشے سے آواز آئی کہ صاحب اس وجہ سے آپ لوگ نہیں مانتے ہیں کہ ایک داماد مولا کائنات ان کی فضیلت میں کوئی شریک نہ ہو جائے. اچھا بھیا علی کی فضیلت میں کوئی ایسا قحط نہیں پڑا ہوا ہے کہ اور بیٹیاں مار کے ان کی فضیلت اگر کوئی اور ہوتی تو ہمیں ماننے میں کیا خبر. لیکن ہاں اس کو بھی تاریخ جو ہے لکھ گئی بس وہ وہی جو کہتے ہیں علمی مسٹیک کیا چلی آ گئی تھا اور بھی تھی. ہمیں کون سا اعتراض تھا ماننے میں؟ اچھا ٹھیک ہے بس آخری بات کہ ٹھیک ہے آپ مان رہے ہیں ہم مانتے رہیے لیکن ایک کہیں سے جھوٹی بھی روایت لے کے آئیے کہ جس وقت جھوٹوں پہ لعنت کرنا ہوا تھا بیٹیاں اور کہاں چلی گئی؟ آیت میں بڑی گنجائش کے لے کے جاتا ہوں. لے کے جانا چاہیے تو وہ کہاں تھی؟ گئی تو صرف اور صرف ایک ہی جو جھوٹوں کے مقابلے میں قافلہ سچوں کا چلا اس کے مرکز میں ایک ہی بیوی جس کو آتا ہوا دیکھ کے سب سے بڑے پادری نے یہ کہہ کے بالکل مہرے تصدیق ثبت کر دی. آنے والے چہرے ایسے ہیں کہ اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوٹا ہو جائے. غیروں کو بھی اعتراض تھا یہ ذوات مقدسہ کیسی ہے، یہ ہستی کیسی ہے. اللہ اکبر. نہ پہچانا تو امت نے نہ پہچانا، نہ قدر کی تو امت نے. جھوٹوں کے دربار میں سچی بیوی کو اپنا اس سے زیادہ کردناک، اس سے زیادہ دل سوز کوئی واقعہ ہو نہیں سکتا ہے. آج کسی بھی شریف کو اس ایسے مرحلے پہ اپنی سچائی ثابت کرنا ہو، کہتے میرے مرنے کا مقام ہے کہ میں سچائی اپنی ثابت کروں، اس بھری جگہ میں اپنے کو سچ ثابت کروں. دنیا کہتی ہے کہ نہیں اگر آپ سچے ہیں تو بولے. ارے میرا بولنا ہی جو ہے وہ تو میں تو کہتا ہوں کہ وہ تو باقی مقدمات تو چھوڑ دیجیے. بیوی کا اپنے حق کے لیے اس جگہ جانا ہی قیامت اور پھر پلٹ کے آ کے یہ کہنا کہ آج میں جو دربار کا رخ دیکھ کے آ رہی ہوں بیٹی ہی دربار کا جو منظر تھا آج تو صحابی نے سارے لیکن کل جب دربار میں جائے گی تو صحابی نہیں ہوگی بلکہ شرابیوں کا دربار. اللہ جناب ابوذر کے لیے ملتا ہے کہ ان کے لیے انہوں نے فرمایا تھا سچ کا معیار بتایا تھا. اے ابوذر روئے زمین میں کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان میں سایہ نہیں ہوا
जो तुमसे ज्यादा सच्चा हो, तुमसे ज्यादा सच्चा हो। लेकिन उस सच के अलमबरदार को भी जब मदीने से जाना पड़ा है, अरे बड़ा दिलसोज वाक़या है। सच्चाई की बात आई तो जनाब अबू ज़र के दो जुमले बस सुन लो। कम पढ़े जाते हैं, कभी कभी जिक्र आता है तो जिक्र कर दिया जाता है, लेकिन बड़ी यानी यूँ कहें दिलसोज वाक़ये में बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि वाक़ई उनका वो मेयारे इश्क जो है वो पता चलता है कि जनाब अबू ज़र किस मेयार पे थे। कहते बेइख्तियार जनाब अबू ज़र की आंखों से आंसू रवा है। एक मरतबा मौला कायनात क्योंकि रुखसत करने के लिए आए थे और हसनैन अलैहिस्सलाम को भी साथ लेके आए थे एक मकाम पे जहाँ से मदीना छोड़ रहे हैं जनाब अबू ज़र। साथ में कौन? एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची, एक बेटा, एक बीवी। अरे आप सोचिए तो सही है, तो हम किताबों में पढ़ के आपको सुना रहे हैं ना, लेकिन जरा मंजर को सोचिए, क्या मंजर हो। किसी ऐसी जगह नहीं जा रहे हैं कि बहुत आसाइश है, बहुत आराम है, घर पहले से वहां तैयार है, जा रहे हैं वहां जाके रहेंगे वहां पे ना। रब्जा बेया हो गया सहरा, बेख्तियार हो गए। तो मौला ने पूछा अबू ज़र क्या उस मुसीबत पे जाने के लिए वो मुसीबत याद आ गई? पलट के फरमाया मौला आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे इस मेयारे इसको, इसके लिए नहीं रो रहा हूँ, बल्कि रो इस वजह से रहा हूँ कि अब ये सूरतें मुझे नसीब नहीं, अब आपका चेहरा देखना नसीब नहीं हो, अब हसनैन की सूरत देखनी नसीब नहीं हो। कहते हैं जनाब अबू ज़र को रुखसत किया, बेइख्तियार हुए मौला कायनात में, चले गए जनाब अबू ज़र। बड़ा दिलसोज वाक़या है, वाक़ई कभी दिल काम उठता है। कैसे कैसे सहाबी गुजर गए। कहते हैं एक दिन बैठे हुए थे, बेटे को इस आलम में पाया कि अब ज्यादा दिन तक ये मेहमान नहीं रहेगा। जानो के सर रखा, बेटा कुछ कहना है? कहा बाबा जान कुछ नहीं कहना, लेकिन मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि अभी मैं थोड़ी देर के बाद अगर दुनिया से चला जाऊंगा, इस आलम गुर्बत में आप तन्हा अकेले कैसे मुझे दफनाएंगे? सोचिए कि जिगर अगर फट न जाए तो क्या हो कि जवान बेटा ने कह रहा आप मुझे आलम गुर्बत में कैसे दफनाएं? बेटा मुझे यकीन है मेरे सच्चे रसूल ने जो वादा किया है वो असबाब वो पैदा करेगा मेरे मालिक। कहते हैं कि जैसे इंतकाल हुआ तो पास की बस्ती में गए और आवाज दी मैं सहाबी रसूल हूँ। जैसे कहा मैं सहाबी रसूल हूँ, लोग घरों से झूठ दर झूठ निकल आए। सहाबी रसूल और रिसालत में रोते हुए मेरे दरवाजे पे आया है, आखिर क्या वजह है? कहा मेरे जवान बेटे का इंतकाल हो गया, उसकी तकसीम करना। अब तारीख कहती है कि सारे अपने अपने घरों से निकल के चले आए और सबने कहा अबू ज़र एक जगह बैठो, जवान बेटा है, हम नहीं चाहते कि उस जवान की मैयत पे तुम हाथ भी लगाओ। मैं कहूँगा अबू ज़र कम अज कम इतने तो खुश नसीब थे कि जवान बेटे को जब दफनाना हुआ तो कोई तो था जो कह रहा था कि जवान बेटे को हाथ न लगाना। हाय गरीब हुसैन, हाय मजलूम हुसैन। कहते हैं दो जगह साथ थोड़ा मुख्तसर किया। आखिर में वो वक्त आया कि जनाब अबू ज़र है और तन्हा बेटी। एक दिन करीब बुला के कहा बेटी शायद लग रहा है मेरा वक्त करीब आ रहा है, मगर घबराना नहीं, हम रसूल के घराने से वाबस्ता लोग हैं, अल्लाह मदद करेगा। अब आप सोचिए कि एक बूढ़ा बाप अपने मरने की खबर दे रहा हो और छोटी सी बच्ची बाबा इस दश्ते बला में, इस तन्हाई में, इस हुकूमत के आलम में मुझे तन्हा छोड़ के चले जाएंगे। बेटी तुम तन्हा नहीं होगी मुझे यकीन है, बस इतना करना मेरे लाशे को सरे राह ले जाके रख देना, दूर से काफिला आता हुआ नजर आएगा, बस इतना कहना कि सहाबी रसूल अबू ज़र का इंतकाल हो। कहते हैं कि जैसे इंतकाल हुआ बेटी ने एक चादर उड़ाई और ले जाके सरे राह रख दिया। थोड़ी देर के बाद जो गुबार देखा तो काफिला आ रहा है, एक काफिला आ रहा है। जैसे ही काफिला करीब आया तो उसमें एक बारिश सबसे आगे आगे बैठी, उन्होंने आके एक मर्तबा बेटी को सबसे पहले गले लगाया, सर पे हाथ फेरा, बेटी